it has become clear. Yeah, It has become clear. And my husband says कि skin में glow आ गया है, eyes के पीछे जो dark circles थी that have vanished. Like I am doing it deliberately, to be very honest. मैं सच में नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैं I'm feeling very good, I'm looking very beautiful. But yes, this deliberate exercise is also giving me lot of outcome, ma'am. that if you remember the first chapter, the preface and all that, which we Mm-hmm. read, it says there are three steps to it. Na? First Yes. is deliberately think Yes. and say thank you. And when you deliberately think and say, you will deliberately feel about it. Yes, ma'am. Teen steps yaad hai na? There were three steps to it. हाँ हाँ हाँ. Deliberately thinking and speaking, and deliberately thinking, speaking and feeling. So Yes. that is the beginning of it. अगर जहाँ पर भी आपको struggle है gratitude देने में, this is the beginning of it. That you deliberately do that. Yes, ma'am. तो अभी स्माइल की बात हो रही थी ना, तो you know that resort where I was yesterday, one thing was so good about ना वहाँ के staff को लेकर जितने भी staff था वहाँ पे, hospitality में they are trained to smile, right? Be very pleasant and smile whenever you're speaking to a guest or somebody. But we are so used to that plastic smile of all these, you know, five-star hotels में जितने भी लोग होते हैं, they give that plastic smile. So, but these people who were there yesterday in that resort, you know, the eyes were smiling. When they were smiling, their eyes were smiling, which said that it was such a genuine smile. Do you make the difference? अगर Yes, आपको कोई ma'am. वैसे स्माइल दे रहा है या अंदर से खुश होकर स्माइल दे रहा है, तो उसकी आंखें भी जैसे ना ट्विंकलिंग कर रही होती हैं, उसकी आंखों में भी स्माइल होती है. Yes. जैसे आजकल मास्क से मुंह ढका रहता है, तो कोई स्माइल करे तो दिखता भी नहीं है. Yes. But if somebody is really smiling, you can see that in their eyes. Eyes, yeah. Yes. Yeah, which was so visible in each and every person in that resort. And we actually complimented them, and we complimented the people, people at the higher level, that this is something which is unique about your property, that people are genuinely, smiling and feeling happy that people have come and they're serving them. Nice. So स्माइल से वो बात याद आ गई मुझे. हाँ जी, और किसने किया था कल अपना मिरर एक्सरसाइज? वंदना? I had to log off in between और उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हुई थी, तो मेरे को पता नहीं था, नहीं आपने उसका वो डाला था एक्सरसाइज का. बट द आपको चेंज पता नहीं था? कल सेशन में नहीं थी आप? मैं आफ्टर 45 minutes I logged off. This is the commitment, yeah. I know. And those मेरे को 45 लगा minutes मैं also, recording one कर second, लूंगी बाद Vandana, में. Vanda, 1 second. Those 45 minutes also, it was talking about mirror. It was talking about you speaking to your own self. Yeah. Yeah. चलो, anyways, नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, आज कर लेना. बट मैंने जो चेंज करा, मैं 4 बजे उठ के आई रोट 3 पेजेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो मैं काफी टाइम से मिस कर रही थी. सो कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड एंड ऑल, पूरा मैंने एक्सरसाइज करा, सब कुछ करा. इट Very इज good. जस्ट दैट आई वाज लुकिंग एट कि कहीं मुझे अगर रिकॉर्डिंग आ जाती तो मैं पूरा देख लेती. रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मैं वो सोच रही थी एक्सरसाइज होती तो वो देख लेती. देन आई थॉट ओके, लेट मी फर्स्ट let the day go how it goes today. So that's the change. That was another a big change I did. It was almost an effort to wake up at. I know, I get that. And congratulations that you made that effort. Yeah. And so yesterday, because of the network issue, I could not record because we were getting disconnected again and again. And uploading was also not possible. That's why we did not do it. And I reached very late last night. And since we were repeating it, so I thought it's okay because we are going to do this session again today. And anyways, if you've not done it, today's another day. Let's do it from today. No issues. मेरे वैसे भी एक दिन बाद ही होती है एक्सरसाइज. हाँ, आपकी तो रात ही होती है. No issues at all. Yeah, Tarun, Varun, Preeti.
Varun, did you do the exercise yesterday? Yes, I did. Okay. How many times and what was the experience? The experience was कि पहली बात तो किया बड़ा टाइम के बाद था. So दो अर्चना को जो इशू आ रहा था ना, खुद को एक्नॉलेज करने की आदत तो है नहीं. So initially I was facing difficulty, but still I was doing it, like fake it till you make it. Yeah. In the evening I did also. I strongly believe कि over a period of time ना मैं used to हो जाऊंगा. अगर मैं इसको regular करूंगा ना, तो फिर like I will, you know, fall in love with myself. देखा नहीं पूरन को, how he is fallen in love with himself. Yes. तुम्हारे तो सामने जीता जागता एग्जाम्पल है. Yes, now that is what I'm up to. अरे खुद से तो प्यार कर लो यार, बाकी उससे तो बाद में होगा. Great. Yeah, Tarun, did you do the exercise yesterday? No, ma'am, I was not there in the session yesterday. No issues. No issues. Okay, Preeti. Okay, because since yesterday we did not complete the session, like we did complete the session, but I did not post the assignment as well as the recording. So many of you have missed it. No issues. So let's start the chapter today. Who's going to read? Ma'am, I nominate my name. If anybody else is there, I'm okay with that also. This is Archana. Anybody else wants to read, or Archana can go ahead? Ma'am, I can go ahead. Nobody's replied. It's pleasure reading this chapter. Yeah, Archana, please go ahead. Day 27, the magic mirror. Give me a second. Yeah. Yeah, please continue. Ma'am, ma'am, can you hear me? I can hear you. Okay. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Kahlil Gibran, poet and artist, 1883-1931. The name is Khalil Gibran. Okay. Oh, Khalil. Khalil Gibran. Yeah. Okay. So ये हमने कल भी पढ़ा था. I'll just recreate it for everyone. The appearance of things change according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them. Well, the magic and beauty are really in ourselves. अभी आपने इंग्लिश में भी ये कहावत सुनी है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर. Yes, ma'am. कल मैंने शेयर किया था कि अगर बच्चे खेल रहे हो, मतलब मान लो 8-10 बच्चे खेल रहे हैं, माँ से पूछो किसी कि तुम सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो वो अपने बच्चे को ही बोलेगी, because to her child is the most beautiful child. या और जब आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं तो आपको सबसे हैंडसम लगता है और सबसे खूबसूरत लगती है वो लड़की, उसके बारे में हर चीज बहुत अच्छी लगती है, बाकियों को नहीं लग रही. अगर वो सच में ही उतनी अच्छी हो या सच में ही वो इतना हैंडसम हो, तो आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स आपको बोले ये ऐसे क्यों बोले आपको कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है. आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, आपने किसी की बहुत तारीफ की. I'm so sorry. And somebody, बाकी लोग बोलते हैं कि तुझे क्या दिख रहा है इसमें, ऑर्डिनरी बंदा है, इसमें तो कोई खास चीज है नहीं, ऑर्डिनरी हाइट है, ऑर्डिनरी बिल्ट है, बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक ठीक ही है, चेहरे पे भी कुछ खास ऐसे कुछ मतलब इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं, पता नहीं तुझे क्यों अच्छा लगता है ये बंदा. सुना आपने किसी ने ऐसा अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से? या और सिमिलरली अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत लगती है किसी लड़के को, वो अपने घर में आके बोलता है मुझे इसी लड़की से शादी करनी है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो माँ बाप बोलते हैं या बहन भाई बोलते हैं क्या दिख रहा है तुझे इसमें,
ऐसा क्या है इसमें कि तुझे लग रहा है कि मुझे इसी से शादी करनी है? Yes, ma'am. ऐसा होता है ना? Yes, yes. क्यों? बिकॉज द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। क्योंकि मैजिक आपके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। अगर उसके अंदर होता तो सबको दिखता। अगर उस इंसान के अंदर वो ब्यूटी होती, वो खूबसूरती होती, तो वो सारी दुनिया को दिखती ना। आप ही को क्यों दिख रही है? बिकॉज आपके अंदर वो मैजिक है, आप उसको प्यार से देख रहे हो, इसलिए आपको उसमें वो सब चीजें दिख रही हैं। राइट? सो दिस इज हाउ आवर लाइफ इज। हम जैसे भी जिस तरह का चश्मा लगा के दुनिया को देखते हैं, हमें चीजें वैसी ही नजर आनी शुरू हो जाती है ना? सो लेट्स Yes. रीड। You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in your life to the fullest, and realizing all of your dreams. ओके, तो हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं? आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में देखो, क्या कर रहे हो आप? ईदर यू आर ट्राइंग टू चेंज समबडी, आपके घर में आपकी किसी से नहीं बनती है तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। आपको उसकी कोई आदत नहीं पसंद, तो मान लो मम्मी और बीवी की नहीं बनती है, तो आप मम्मी को बदलना चाहते हो और आप अपनी बीवी को बदलना चाहते हो। और अगर घर में किसी को कोई आदत है, मान लो किसी की आदत है कि वो जूते जूते लेके अंदर आ जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता कि वो जूते अंदर लेके आए, तो आप उसको बदलने की कोशिश करते हो। भाई कितनी बार बोला जूते बाहर दरवाजे पे उतार के आओ। मतलब कैसा माहौल चल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हो, फिर सारे जूते लेके पूरे घर में घूम रहे हो। You don't know what kind of infection you are carrying with it, and you just trying to explain it to that person कि किसी तरह से उसको समझ आ जाए और वो बदल जाए। ऐसा हो रहा है हम लोगों की लाइफ में, रोज होता है ना। Hmm. अगर आप ऑफिस में भी हो तो आपको लगता है कि माय बॉस शुड बी लाइक दिस, वो ऐसा नहीं है, तो उसको मैं कैसे सेट करूं, या अपने सबॉर्डिनेट को कैसे सेट करूं ये मेरे हिसाब से काम करने लग जाए। या सिचुएशन मेरे ऑफिस की ऐसी होनी चाहिए कि मुझे वट एवर टाइम आई वॉन्ट टू गो, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जिस टाइम मैं काम कर रहा हूँ कोई मेरे केबिन में ना आए, कोई मुझे कॉल ना करे, ताकि मैं फोकस होकर काम कर पाऊँ। आर यू एबल टू डू ऑल दैट? आर यू एबल टू मैनेज दैट? कोशिश बहुत No, कर ma'am. रहे हैं चीजों को अपने आसपास बदलने की। आर यू एबल टू चेंज इट? No, ma'am. बिकॉज यू ट्राइंग टू फिक्स देम, क्योंकि आप अपने नजरिए से उन चीजों को देख रहे हो। और वो नजरिया क्या होता है? एक तरह का चश्मा ही है ना भाई। अगर आपने हरे रंग का चश्मा लगाया तो आपको सब कहते हैं ना, वो सावन के अंधे को हरा ही दिखता है हर तरफ, है ना ये कहावत। तो अगर आपने हरा चश्मा लगाया हुआ है और आपको सब चीज हरी दिख रही है, तो आप होगे यार ये हरा हरा क्यों है सब कुछ, सब लोग ऐसे ही क्यों है। मान लो आपको गुस्सा बहुत आता है, आपने गुस्से का चश्मा लगा रखा है, आपको हर एक बंदे में दिख रहा होगा ये बंदा पागल है, जब देखो लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसको गुस्सा ही आया रहता है, क्योंकि आपने गुस्से वाला चश्मा पहना हुआ है। आपको हर एक बंदे में वही चीज नजर आ रही है, ये गुस्सा क्यों कर रहा है, लड़ाई क्यों कर रहा है, जब देखो लड़ता रहता है, जब देखो आर्ग्यूमेंट करता रहता है। एंड इफ यू आर फियरफुल, मान लो आपको डर लगता है या आपको इनसिक्योरिटी है, तो आपको हर चीज में इनसिक्योरिटी दिखेगी। आप जॉब पे जा रहे होगे तो आपको लग रहा होगा बॉस ने कुछ डांट दिया थे, यार अब ये ना ये मेरा अप्रेजल खराब करेगा इस बार, वो फियर आना शुरू हो जाता है। घर आते हो लेट हो गए हो तो लगता है कि आज फिर बीवी सिर खाएगी, आज फिर कहेगी क्या है तो रोज लेट आते हो, बता नहीं सकते थे। अब यार हो गया ट्रैफिक में लेट, मैं क्या करूं, या तो मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला लूं या मैं घर पे मैसेजेस कर लूं या फोन कर लूं। यू आर अगेन फीलिंग इनसिक्योर एंड फियर, वो हल्का सा फियर है कि ये फिर आज ये होगा। आर यू गेटिंग इट? Yes. आर यू पीपल एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या आप Yes, ma'am. जैसा भी सोच रहे हो, जैसा भी आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग है, आपको सब चीजें वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिक्स देम अकॉर्डिंग टू यू। और वहां पर हम सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं। हो रहे हैं क्या? No, ma'am. इतने साल हो गए लोगों को बदलने की कोशिश करने में, क्या बदल पाए उनको हम? No. Yeah, so we never succeed.
and that is impacting the quality of our life. We are not able to realize our dreams. We are not able to live fulfilled life, right? But Yes. let's read from here. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world magically changes because you change. So, what you're attracting change too. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful message of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. okay, आपने ये भी सुना होगा ना, when you change the way you look at things, things around you change. Yes. या तो आपको लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। और अपने आप को आप कैसे बदल सकते हो? सबसे आसान तरीका क्या है? ग्रैटिट्यूड। आपने देखा आपके रिश्तों में, जैसे उस दिन शालू बोल रही थी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते थे, and now because she's paying gratitude and she's always saying thank you to them, so they have also started listening to her. They have also started, uh, बहुत अच्छे से बात करने लगे उनसे। तो क्या हुआ? उनको जाके थोड़ी बदला, उनको इतने सालों से चेंज करने की कोशिश कर रही थी, नहीं कर पाई ना। शी ओनली चेंज हरसेल्फ and she just started practicing gratitude. So once you start practicing gratitude as a way of life, अब ये वे ऑफ लाइफ क्या होता है? वे ऑफ लाइफ ये होता है जैसे आप सांस लेते हो, जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, जैसे आपको पता है कि मुझे 2 टाइम या 3 टाइम खाना खाना है, जैसे आपको ये सब आपकी जिंदगी के एक वे ऑफ लाइफ है ना, कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ब्रश करना है, फिर मुझे नहाना है, फिर मुझे खाना खाना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, ये आपका एक वे ऑफ लाइफ बन गया हुआ है। उस वे ऑफ लाइफ में अगर आप ग्रैटिट्यूड को वे ऑफ लाइफ बना लेते हो, that for each and everything, whatever you are touching, like you don't have to remember कि आज का प्रैक्टिस क्या था या आज की असाइनमेंट क्या थी, या आपको भी याद करने की जरूरत ना पड़े। automatically when you start paying gratitude for everything and anything, Yes. आपके आसपास जो भी है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें। आप इंटरनेट को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप पानी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप पंखे को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप एसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप when you're looking at the clock, you're giving gratitude to the wall clock. Like I'm just looking around in my room and just saying all these things. I'm saying gratitude to my table lamp, which is giving proper light for my video. Yeah. So when you start looking for things to be grateful for, and it becomes a way of life, कि आपको सोचना नहीं पड़े कि मुझे ग्रैटिट्यूड देना है, मुझे आज का असाइनमेंट करना है। If it is not like that, that gratitude is just flowing, like it's like जैसे सांस ले रहे हो, ऐसे आपके आदत बन जाए कि आपने हर चीज में ग्रैटिट्यूड देना है। तो जब आप ऐसा करने लग जाओगे, what will happen? A person in the mirror, that is you, will change. और गांधी जी ने भी यही बोला था ना, जैसे आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, आप वैसा पहले अपनी ऐसा आप लोगों के साथ करना शुरू करो। या आप जैसे माइकल जैक्सन का सॉन्ग है मैन इन द मिरर, विच इज वेरी वेरी फेमस सॉन्ग, और वो हर बार हम अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं। एंड व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इट इज, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट go around changing the world, just change one person in the mirror, and everything around you will change. और ये चेंज कैसे करना है, आज हमने इस चैप्टर में वो पढ़ना है। हाँ जी, पढ़े। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. या सो अभी जब हम इतने दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, द जर्नी व्हिच वी स्टार्टेड ऑन 3rd of आई थिंक 3rd of March, 3rd of June, जब हमने ये जर्नी शुरू करी है, जब से हमने एक बुक को पढ़ना शुरू किया है, आज हमारा 27th चैप्टर है। सो 26 consecutive days, one after another, every day,
अगर आप ये प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, यू आर नॉट द सेम पर्सन। आप में से कितने लोगों को ये एहसास हो चुका है कि आप सेम इंसान नहीं हो? अनम्यूट एंड से। Ma'am, I, Ma'am, Archana. me too. Okay, Lot of Me too change. this side. Me too. Yeah, same Okay. here. okay, Same here, ma'am. okay. So everybody has started feeling that they have changed as a human being, right? And they're not the same person. और अगर अभी भी आपको डाउट है कि मैं तो कुछ बदला नहीं, तो अपने आसपास देखो, क्या आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है? Is there anything which was not there earlier, or things have started happening on its own, or are you feeling more happy these days? आज से 1 महीना पहले क्या आप उतने खुश रहते थे जितने आप अब रहने लग गए हो? You know, so when you start looking at all these evidences around you, जब आपको ये सब दिखना शुरू हो जाता है, तो आपको एहसास होने लग जाता है कि हाँ, this magic is happening. Like yesterday, I wanted to get a magic rock for my helper Vanita, जो मेरे साथ रहती है, because she also practices it. तो उसका ना कोई बच्चा आया तो वो उठा के ले गया, उसके पास मैजिक रॉक नहीं था. So since I had gone that side, तो मैंने कहा अगर मुझे कहीं दिख गया तो मैं उसके लिए अच्छा सा कोई पत्थर उठा के लेके आऊंगी. और कल लास्ट डे तक, कल तक मुझे वो मिला नहीं कहीं पे भी. मैं राम झूला, लक्ष्मण झूला, गंगा किनारे सब जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं मिला मुझे वो. तो जिस रिसोर्ट में हम कल ठहरे हुए थे, वहां पे ना उन्होंने रिफ्लेक्सोलॉजी का एक पाथ बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है. तो वो भी बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, तो वैसे ही पत्थर वो गोल गोल पर बड़े, बहुत बड़े बड़े थे. तो आई वाज स्टैंडिंग इन द रिसेप्शन एरिया एंड हम लोग ऐसे बात कर रहे थे. तो वहां का जो एक लड़का था, क्या नाम था, ऐसी कुछ नाम था उसका, नाम ही भूल गया उसका, मुझे बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा नाम था उसका. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं ना एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर ऐसा स्टोन ढूंढ रही हूँ जैसे बाहर लगे हुए ना रिफ्लेक्सोलॉजी में, पर उसमें मुझे छोटा चाहिए जो हाथ के अंदर आ जाए. कहता मैम इतना छोटा तो कुछ नहीं होगा, यू नो, मैं देखता हूँ अंदर कहीं कुछ और पड़े हो पत्थर वगैरह. तो एंड यू नो आई जस्ट सेड दैट टू हिम एंड जस्ट टर्न्ड माय फेस. रिसेप्शन पे ही खड़े खड़े मैंने ऐसे ही अपने गर्दन घुमाई. यू वोंट बिलीव इट, वहां पे एक डेकोरेशन उन्होंने कुछ करी हुई थी, उसमें उसी साइज के सारे स्टोन्स थे जिस साइज के मैं ढूंढ रही थी. They were at least 40-50 of them, और जो मुझे दिखे नहीं थे अभी तक. और मैं रिसेप्शन में कम से कम 5 बार जाके बैठ चुकी हूँ. I looked around for things, एंड वहां बैठ के हमने वेलकम ड्रिंक भी लिया, और वहां बैठ के किसी के साथ मीटिंग भी करी, सब कुछ करा, पर मुझे वो पत्थर नहीं दिखाई दिए थे. The moment I told him that I wanted that stone, and he said, "मैम है तो नहीं, पर फिर मैं देख लेता हूँ कहीं पड़े हो." And the moment I just turned my, मतलब मैंने मुंडी घुमाई अपनी, गर्दन घुमाई अपनी, and वहीं पड़े थे. Can you see the magic? Yes, ma'am. It was already there, और मुझे वो दिखे नहीं. But the moment I said that I'm looking for it, magic universe ने बोला ये पड़े हैं, उठा ले यहाँ से. And then I picked up from there, and जो मेरे पार्टनर मेरे साथ गया था उसकी वाइफ ने बोला मैं भी ले लेती हूँ, फिर मुझे बता देना इसका क्या करना है. ऐसा श्योर. So she also took one magic rock with her. So this is how the things are happening around you, right? Environment change हो गया, आपके circumstances change हो गए, right? मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं 1 महीने में 2 बार ऋषिकेश होके आ जाऊंगी. Yes, ma'am. कहाँ घर से निकलने की, मतलब इतना सोचना पड़ता है इंसान को घर से निकलने के लिए. Like expenses are there, other things start to be taken care of, and I just picked up my bag and went again. It was all magic, and I had such wonderful time. So your happiness level would have increased. You have felt that you're not the same person. आपको गुस्सा शायद कम आता हो, आप खिंचते कम हो गए, कंप्लेन करना कम कर दिया होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको अपने आप में दिख रहे होंगे. या हाँ जी, पढ़े. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your
for your and even for people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. Okay, When you 1 second. तो अभी हमने 26 दिन में क्या किया है? हमने उन सब लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया जिन्होंने हमें पास्ट में हमें हमारे लिए पैसा खर्चा। हमने अपने रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो रिश्ते काम नहीं कर रहे उनके लिए, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग सड़कों पे जा रहे हैं उनके लिए भी, जिसको तकलीफ में देखा उसके लिए भी, हमने सबके लिए ग्रेटिट्यूड दिया, है ना? एंड we have not paid gratitude the most important person, that is you. The most important person in life is you. और ये हम लोगों को ना कभी भी रियलाइजेशन नहीं होता। हम हमेशा दूसरों के लिए ही भाग दौड़, उनको ही प्लीज करने में लगे रहते हैं। कभी बॉस को खुश करने में लगे हुए हैं, तो कभी बीवी को खुश करने में लगे हुए हैं, कभी माँ को खुश करने में लगे हुए हैं, तो कभी अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। That's what we are doing. And we forget the most important person is we. I as a person is the most important person. अब यहाँ पर ये नहीं होना कि आप बस अपने ही बारे में सोच रहे हो, वो भी नहीं करना है हमें। वहां पे फिर अहंकार आ जाता है, वहां पे सिर्फ नेगेटिविटी आ जाती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन सबका सोचने के बाद, इन सबका करने के बाद, द ओनली पर्सन विच इज लेफ्ट एंड विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज यू। अब मैंने ये पिछली बार भी क्रिएट किया था कि आप जिंदगी ऐसे जीते हो कि आपकी सारी दुनिया जो है, जो सर्कल आपका लाइफ का है, उसके अंदर है आपकी सारी दुनिया। आपके सारे रिश्ते, आपकी सारी जॉब, आपकी सारी खुशियां, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे हॉबीज, एवरीथिंग, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके सब जो है वो आपका जो सर्कल है लाइफ का, जिसको आप अपनी दुनिया कहते हो, योर वर्ल्ड इज इनसाइड दैट। एंड वेयर आर यू? आप कहीं पेरिफेरी में हो, और पेरिफेरी में रह के आप उन सबको खुश करने में लगे हो, उन सबको मैनेज करने में लगे हो। बट I want to say that you are the person who's at the center of it. क्योंकि ये दुनिया किसकी है? आपकी है। इस दुनिया की रचयिता कौन हो? आप हो। आपके रिश्ते हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका ऑफिस है, आपका बॉस है। सबसे पहले कौन है? आप हैं। और हम ऐसे जीते नहीं हैं। But the moment you know that you are at the center of this, and that your world is existing all around you, then you get some power to deal with everything with lot of confidence, you know? तो अगर आप इस चीज का एहसास करते हैं कि the most important person is you, and आपको भी ग्रेटिट्यूड देना है अपने आप को, तो सबसे पहले लगता है मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड किस लिए दूं? मैंने क्या किया? How many of you thought that? जब मैंने अभी बोला कि सबसे पहले अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में गई, मैंने ऐसा क्या किया? मेरे तो आई, और किसके आई? मैम मेरे भी आई मैम। और किसके आई दिमाग में कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अपने आप को ग्रेटिट्यूड दूं? दैट वाज द फर्स्ट थॉट। थिंकिंग वाला नहीं। उसके बाद तो लॉजिक में जाओगे तो बहुत सारी चीजें थोड़ा याद आएंगी। सोचना पड़ता है कि अरे हाँ, इंस्टेंटली नहीं आता है मैम। हाँ, इंस्टेंटली क्या आया था दिमाग में? तरुण, वरुण, मीनू, प्रीति, खुशबू, क्या आया था? इंस्टेंटली क्या आया था दिमाग में जब मैंने बोला अपने आप को ग्रेटिट्यूड दो? सोचना पड़ा कि किस बात के लिए दें। हाँ, तो इंस्टेंटली तो यही आता दिमाग में, किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड? मैंने ऐसा क्या किया? या ओके, लेट्स रीड। अब देखते हैं कैसे करना है। अर्चना, प्लीज कंटिन्यू। When you're grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting,
and disappointing circumstances in your life magically disappears too. ओके, अब मुझे ये बताएं, जब आपने पहली बार मिरर में देखा तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? डिस्कंटेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट और आई एम नॉट गुड इनफ, इसमें से क्या महसूस हुआ? somebody share. जैसे अर्चना ने शेयर किया, मुझे लगा मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं. That is dissatisfaction, right? और Yes, disappointment. Yes. और कोई शेयर करे? मीनू, आपको क्या महसूस हुआ जब आपने मिरर में देखा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा यार मैंने कितने दिन बाद अपने आप को अप्रिशिएट किया. Okay, great, very good. Okay, who else would like to share? Preeti? यस मैम. सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि अपने लिए करना क्यों है, हमें जरूरत क्या है. पहली फीलिंग तो ये आई कि जरूरत क्या है. मगर ये जरूरत का क्वेश्चन कहाँ से आ गया वो अपने पे. चलो आज का टास्क तक करते हैं. तो फिर देखा तो अपने में एक सेल्फ ब्यूटी भी फील हुई कि ये इस नजरिए से अपने आप को देखा ही नहीं हमने. नहीं, बट पहली बार जब देखा या इससे पहले जब भी शीशे तो में मैम बस वही था कि जैसे मेरे थोड़े दांत बाहर आए हैं, वो है यार ये चीज मेरी बड़ी अजीब सी या फोटो है जो मेरी बहुत अच्छी क्लिक नहीं होती है. तो वहां पे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट भी आई थी अपने आप को देखते हुए, सोचते हुए. या एंड हम सब ह्यूमन बीइंग में ये एक चीज होती है जो हमारी जिंदगी को चला रही होती है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ. मेरे में तो बहुत ज्यादा है, काफी कम हो गई है बट अभी भी है. और ये कहाँ से आती है? बिकॉज व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. Is discontenting is the same thing? या बिकॉज आपको लगता है कि आप तो अच्छे हो ही नहीं. डिसकंटेंटमेंट तो वही है ना. कंटेंट तो तब होगे ना जब आप सेटिस्फाइड होगे अपने आप से. तो डिसकंटेंटमेंट तो तभी है ना आपको लगता है कब कुछ तो ठीक नहीं है यार मेरे साथ. मेरी गालें कितनी अजीब सी हैं, मेरी आंखें कितनी छोटी छोटी हैं, या मेरे बाल कितने कम हो गए, या मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, या मैं for the guys, like my face is looking so broad. I used to look so handsome earlier. Look at the other person, वो कितना अच्छा कितना handsome हो गया है, मुझे देखो मैं वैसे का वैसा. ऐसे हम सबके अंदर ये चल रहा होता है that I'm not good enough. बट ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद ना आपकी वो सारी फीलिंग्स, डिसकंटेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, वो सब गायब हो जाती है. सिर्फ एक प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें गायब हो जाती हैं. लेट्स रीड. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment. And those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. ओके, अगर मान लो मुझे लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, so I'm not good enough. Okay, that's one negative feeling which I am carrying. Wherever I will go, अगर हमारे बाकी नेगेटिव फीलिंग की बात करें तो वो थोड़ी देर के लिए आती है. अगर किसी रिश्ते को लेके है तो वो रिश्ते वाला वो इंसान सामने होता है तो हमें आती है, या उसने ऐसा कुछ कर दिया तो हमारे दिमाग में आती है. पर अगर आप कुछ और करने लग जाते हो तो भूल जाते हो, किसी और काम में बिजी हो जाते हो. एक ये फीलिंग है विच इज कंसिस्टेंटली इज विद यू. आप जहां भी जाते हो, आप पिक्चर देखने भी जा रहे हो, आप फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, तो आपको ना ये चीज हर जगह आपके साथ चलती है. अगर मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, तो मैं कपड़े भी पहनूंगी तो मुझे लगा यार ये सूट मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है. इफ आई वॉक इनटू अ रूम जहाँ पे बहुत से लोग खड़े हैं,
तो आई विल बी टगिंग एट माई शर्ट कि मैं पता नहीं अच्छी भी लग रही हूँ कि नहीं, पता नहीं ठीक लग रहा है कि नहीं सूट, पता नहीं अजीब तो नहीं लग रही हूँ मैं यहाँ पे. सो आई एम कैरिंग दैट फीलिंग विद मी ऑल द टाइम. या इवन इफ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं वैसा होगा कि जैसा मैं कॉन्फिडेंस से चल रही होंगी. कहीं ना कहीं लग रहा हो यार मेरा सूट अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या पहन के चल रही है. तो वो फीलिंग मेरे साथ हमेशा चल रही है, विच इज डैमेजिंग. Because the more you think about it, the more you will attract negative things into your life, right? That is what the law of attraction says. और बाकी नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है वो थोड़ी देर के लिए आती हैं, फिर हम कुछ और करने लग जाते हैं तो दैट थिंग्स टेक ओवर. बट एनीथिंग टू डू विद योर ओन सेल्फ, जो आप सेल्फ टॉक करते हो, जो अपने आप से बातें करते हो, जो अपने बारे में बातें करते हो अपने आप से, वो बहुत डैमेजिंग होती है. बिकॉज वो आप हमेशा ही करते रहते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, स्पेस, जो भी कहीं पर भी हो आप. सो दैट इज व्हाई दे स्टार्ट हार्मिंग यू मोर. हाँ जी, पढ़े. When you're grateful to you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude for themselves will be giving more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she even what he or she has will be taken from him or her. Okay. Now, this is Mahamantra of this book, which we have been reading about. Now, what it says is when you are grateful for yourself. तो जब आप grateful होगे, gratitude दोगे, तो what will you attract in your life? More such circumstances to be grateful for, right? और ये वाली जो महामंत्र है वो भी यही बोल रहा है कि जो भी gratitude देता है अपने आप के लिए, या will have more abundance, abundance. and जो नहीं देता है जो है वो भी ले लिया जाएगा. अब अगर आप देखो तो कई बार ऐसे होता है कि कोई could be a man or a woman, I don't know, you can just pick one, and that person is very handsome and is very like वो अपने आप को बहुत gratitude देता है, क्या वाह मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ, ये है वो है. And after certain period, पता चला उसकी किसी बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ जान पहचान हो गई, और मे बी वो उसका जॉब ऐसा आ गया कि वो he is surrounded by people who are much more intelligent than him, and he started feeling that he's not good enough. And you will see slowly his appearance, उसकी जो outward appearance है, जो बहुत handsome और बहुत smart लगता था, that will start impacting that also. After some time आप देखोगे वो लटकता हुआ सा इंसान लगने लग जाएगा. वो उसमें that crispness और वो जो उसकी smartness थी वो भी खत्म होती जा रही है. Because he's always complaining and he's always comparing himself with somebody else and is actually not being grateful for what he is and what he is being. और उसको ये लगता है मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, तो जो कुछ उसको आता है उसको लगता है उसको कुछ भी नहीं आता, एंड उसको लगता है मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं किसी भी तरीके से. वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को डैमेज करना शुरू हो जाता है. आपने ऐसे लोग देखे हैं कोई आपकी लाइफ में कि बहुत अच्छा था वो बंदा एंड सडनली आपको लगता है कि इसको क्या हो गया, तो बहुत स्मार्ट हुआ करता था और ये बड़ी स्मार्ट हुआ करती थी, पता चलो उसकी शादी ऐसे घर में हो गई, सबने उसको बोलना शुरू कर दिया तो बहुत निकम्मी, तेरे को तो आता कुछ नहीं, एंड देन शी स्टार्टेड बिलीविंग दैट, and then slowly everything deteriorated in her life. आपने देखे ऐसे कुछ लोग? एक आध तो सबकी जिंदगी में होगा. If you will think about it, you will find such certain people in your life. So that is what this book is talking about. कि जब आप gratitude देते हो अपने आप को, तो आपके circumstances, आप as a person will start shining, will start showing up. But the moment you start criticizing yourself, the moment you start, comparing yourself, the moment you are, जो हम most of the time करते रहते हैं, तो जो हमारे पास है वो भी ले लिया जाएगा. Over a period of time, it will start
hammering your confidence, hammering your personality. So if you don't want that to happen, start doing this practice of gratitude from today onwards. And this is the most important practice. और इसीलिए ये चैप्टर के सबसे एंड में है पूरी बुक के. क्यों? बिकॉज अब आप इस काबिल हो गए हो कि आप इस चीज को समझ सको और इसकी इंपॉर्टेंस को जान सको. और इसको अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस आपके आसपास अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे. और वो कैसे होगा? When gratitude becomes a way of life. हाँ जी, पढ़ें. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Okay. तो अभी करना क्या है आपको? आपने आज मिरर के सामने खड़े होना है. सेशन खत्म होने के बाद एक बार जरूर कर लेना, बिकॉज ये सेशन के बाद सब कुछ ताजा ताजा दिमाग में होगा, तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, राइट? तो जैसे सेशन खत्म होगा, जस्ट मे बी आप अपने मोबाइल में भी देख के कर सकते हैं, मिरर के पास जाके भी देख के कर सकते हैं. आपने अपने आप को एक्नॉलेज करना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है फॉर हु यू आर. आप आज तक जहां तक पहुंचे हो जिंदगी में, आप बहुत कुछ ऐसा करके आए हो जिसके लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए. आपको ऐसी चीजों के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए जो आपने आज तक जितने भी हर्डल्स पार करके, जितने भी एक्सपीरियंसेस करके आप लाइफ में जहां भी आज पहुंचे हो उसके लिए. So start acknowledging yourself. Start, look at the mirror and say thank you to the person in the mirror. कि क्या कमाल है बंदा तू, क्या कुछ सहन करके या क्या कुछ सीख कर तू आज यहाँ पहुंच गया, या कितना कुछ सीखा है जिंदगी में. सीखा तो हम सब ने है ना, जिंदगी तो सबको सिखाती है. हम लोग भी बहुत कुछ सीख के यहाँ पहुंचे हैं. और वो जो सीख के पहुंचे, जो हमने लास्ट कल चैप्टर पढ़ा था कि हमारी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो हमें कुछ लेसन देने के लिए आते हैं. तो वो सीख जो हमने ली है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस से, बहुत सारे ऐसे चीजों से जो हमारी जिंदगी में आई, लोग, सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात, जो भी हमने जिंदगी से सीखा है, उसके लिए अपने आप को एक्नॉलेज करते हुए थैंक यू बोलना है आपको मिरर में अपने आप को देखते हुए. तो जैसे मैं कल बात कर रही थी कि जिन लोगों ने पहली बार करना है, अभी तक नहीं किया है, तो हो सकता है आपको अपनी आंखों में देखने में डर लगे, हिचकिचाओ आप अपनी आंखों में देखते हुए, हो सकता है ये. तो उस चीज को लेके घबराना नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि आपने अपनी तरफ इस तरह से कभी देखा ही नहीं है. आपने मिरर में सिर्फ अपने रिफ्लेक्शन को देखा है तैयार होते टाइम के, कंघी कर ली, ओके, मेकअप करना है, लिपस्टिक लगानी है, कुछ भी करना है, जो भी कहीं जाना है तो तैयार हुआ, फटाफट निकले. बट ऐसे अपने आप को देख कर अपने आप से बातें करना नहीं किया है कभी. तो जब आप अपनी आंखों में देखोगे तो हो सकता है मुश्किल लगे, नो प्रॉब्लम्स, थोड़ी देर बाद दोबारा कर लो. धीरे धीरे आपको वो इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप अपने आप को आंखों में देखकर बात कर पाओ, राइट? एंड यू हैव टू स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू योरसेल्फ. अब कैसे करना है वो देखते हैं. एंड मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ दैट आई क्रिएटेड दिस यस्टरडे आल्सो, कि हम ना, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है. जो क्वालिटीज मीनू में है वो खुशबू में नहीं होगी, और जो खुशबू में है वो अन्नू में नहीं होगी, और जो अन्नू में है वो बिजल में नहीं होगी, और जो बिजल में है वो मेरे में नहीं होगी. तो हर एक इंसान जो है ना वो यूनिक है. ऊपर वाले ने सबको अलग बनाया है, तभी तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं. आपको देखने में सबके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे लगते हैं, अरे वो लाइनें ही तो है छोटी छोटी उंगलियों के ऊपर. बट व्हाई डू एवरीवेयर फॉर सिक्योरिटी रीजन दे टेक योर फिंगरप्रिंट्स? बिकॉज देयर इज नो मैच टू योर ओन फिंगरप्रिंट. आपके फिंगरप्रिंट जैसा दूसरा कोई फिंगरप्रिंट बनाया ही नहीं है ऊपर वाले ने. सो ऐसे ही आप जैसा दूसरा कोई इंसान ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं है. यू आर होल, कंप्लीट एंड यूनिक
अपनी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे हो आप। क्योंकि अगर आपको किसी और की तरह, अगर आपको ऐश्वर्या राय जैसा बनाना होता तो वो ऐश्वर्या राय जैसा बना के ही भेजता ना, आपको आप जैसा क्यों बना के भेजता? अगर आपको सलमान खान बनाना होता तो वो सलमान खान जैसे ही बना के भेजता आपको। या आपका कोई और रोल मॉडल है, मान लो आपका रोल मॉडल है किसको ले तो गाइस, तरुण आपका रोल मॉडल, रणबीर कपूर। तरुण तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? कोई रोल मॉडल ऐसा तो कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान, सॉरी कौन? अभी तो ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिटरली जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपकी बातों को ज्यादा फॉलो करता हूँ। अभी चलते चलते भी आपने बोला कि यू शुड बी, आपको शाबाशी मिलनी चाहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक ये किया, तो इट रियली फेल्ट गुड, मतलब वो सुन करके भी अच्छा लगता है। मैं ये पूछ रही हूँ, एज अ मैन देयर मस्ट बी समबडी दैट यू रियली लुक अप टू, कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा ऐसा होना चाहिए। ऐसा कौन है? ऐसा मैडम बचपन में रहा होगा कोई, यंग एज में गया होगा। बचपन में तो एक्टर्स और टीवी एक्टर्स हाँ तो कोई एक्टर होगा, कोई तो होगा। हाँ तो मतलब थोड़ा अक्षय कुमार को मैं थोड़ा पसंद करता था, मतलब ओके एक्टिंग वाइज फिर वो डिपेंड करता है ना किस चीज में, मतलब आप रोल अच्छा चलो मॉडल मान लो देखना चाह अक्षय रहे के हो। साथ, अक्षय को ले लेते हैं फिलहाल। तो हम्म। अक्षय में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? उनका कॉन्फिडेंस और उनकी फिटनेस। ओके सो नाउ, अब अगर आपको अक्षय की फिटनेस और उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है तो आपको क्या लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है? मतलब थोड़ा सा कम है। ओके हाँ जी। ओके तो तो अभी उतना नहीं, आप, मतलब हाँ जैसे आई गेट दैट। हम्म, ओके अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर भगवान ने आपको अक्षय कुमार जैसा बनाना होता, उसके जैसा फिजिक देना होता तो पहले से दे के भेजता ना। बिल्कुल। You are the way, you are perfect the way you are, but if your dream is to be like fit like him, you can take actions and be like him, right? यस। या एक होता है कि आप कंपेयर करके अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो, एक होता है कि आप किसी से इंस्पायर होके वैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, बट वहां पे आप अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर रहे हो। There's a difference. One is that you're looking up to somebody, जैसे मेरे साथ होता है, मुझे लगता है the other person is much more articulate, वो बड़े अच्छे से समझाता है, बड़े अच्छे से बोलता है, लोग उसको कैसे मेस्मराइज होके सुनते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है बोलना। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना बिलिटल कर रही हूँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं कम हूँ उससे। ये सेम फीलिंग आती है। हाँ जी, आप हाँ सही कह रहे हैं। सो आई एम नॉट गुड इनफ ना, वही तो फीलिंग है। सो आई एम नॉट गुड इनफ, तो क्या कर रहा है वो हमारे साथ, वो हमें डैमेज कर रहा है। Now, if we say, I am the way I am and I love myself, अगर भगवान ने मुझे वो ऐसी आर्टिकुलेशन देनी होती तो पहले से ही सिखा देता ना मुझे। मुझ में भी ऐसा कुछ होगा जो शायद उसमें नहीं है, क्योंकि राइट। भगवान ने मुझे भी तो कंप्लीट बनाया है ना, मुझे भी तो होल एंड कंप्लीट बनाया है। मेरे में भी कुछ यूनिकनेस होगी जो मुझे नहीं मालूम है, बट देयर इज सम यूनिकनेस इन मी। Yes, ma'am. सही कह रही हैं। Right? So when you start accepting yourself the way you are right now, अगर आपकी फिटनेस लेवल जो भी है इस टाइम पे, या कॉन्फिडेंस लेवल जितना भी है इस टाइम पे, आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि यस मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी 6 पे है, मुझे उसको 10 पे लेके जाना है, बट यू नॉट कंपेयरिंग इट टू समबडी एल्स। यू जस्ट से कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है बट मुझे उसको बढ़ाना है, एंड आई एम ओके विद इट। व्हेन यू एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन इज डिफरेंट। और हम करते क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम, हम सिर्फ अपने आप को छोटा महसूस करते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं पुल डाउन कर देता है। इट जस्ट ब्रिंग्स अस डाउन, हमारा मोरल कम कर देता है, क्योंकि वो मोरल कम कर देता है तो एक्शन लेते ही नहीं हम। मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो हूं ही ऐसी, वो तो देखो कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, मैं देखो कहाँ की कहाँ बैठी हूँ अभी भी, मैं तो हूं ही ऐसी।
तो मैं एक्शन नहीं लूंगी ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेटल्ड कि मुझे आता ही कुछ नहीं है. The other thing is that you accept yourself. रियलिटी क्या है? ये नहीं कि मुझे आता कुछ नहीं, मुझे आता है, बट अगर मुझे सर्टेन लेवल पे पहुंचना है तो मुझे कुछ एक्शंस लेने हैं. First, accepting yourself the way you are and being grateful for that is the first step. Am I making any sense to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first you have to accept yourself the way you are. That's what it say now. But be grateful for you just as you are. So जैसे भी आप आज हैं, उसके लिए अपने आप को accept करो. And be grateful to yourself. And then you will start seeing things around you. सब कुछ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा. आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी चीजें, ऐसे circumstances मिल जाएंगे that you will start shining. You will get opportunities to shine. जो भी चीज से आपको लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, उसी चीज के लिए आपको इतनी सारी opportunities मिलनी शुरू हो जाएंगी. But the first step is to accept yourself, acknowledge yourself, and be grateful for you, who you are. Yeah? तो ये है सबसे difficult chapter है ये आज का. इसको lightly मत लेना. Don't take it lightly कि मैं mirror के सामने खड़े होके बोल दिया, yes, I love my smile. It's not that easy. It's the most difficult chapter. और अगर आपने इस chapter को आपने कर लिया ना, इस chapter को आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो जिंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है आपकी. Let's read. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words, thank you, every time you look at yourself in a mirror. If you are not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. Okay, तो आपको दिन में 2-3 बार ये मिरर प्रैक्टिस करनी है. तो मैं तो ये बोलूंगी जितनी बार भी आपको कोई ऐसा रिफ्लेक्शन वाला सरफेस दिखता है, अगर आप टेबल पे बैठे हो तो टेबल पे आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, फोटो दिख रही है, तो तब भी कर लो. सड़क पे जा रहे हो और कोई कहीं पे मिरर लगा हुआ है तो वहां पे भी देख के बोल लो, क्योंकि मन में ही तो बोलना है. आप गाड़ी चला रहे हो, आपने अपना साइड व्यू मिरर देखा, आप उसको देख के भी बोल सकते हो. बीच सेंटर वाला जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें भी देख, उसको सेट करते हुए उसको भी देखते हुए बोल सकते हो. So just look for opportunities to keep saying thank you to yourself. और अपने आप की तारीफ करा करो जरा. Yeah? Okay. पढ़े. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है ना that we are not being kind to ourselves. सारा दिन काम करते रहे, एनर्जी लेवल नहीं था, तो तब भी लगता कि नहीं यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है, खींचते जा रहे हो, यू नॉट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ. एंड शाम को थक हार के आप पड़ गए, उस टाइम पे बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ. से थैंक यू टू योरसेल्फ कि आज तूने कितना काम किया, आज तूने कितना कुछ अकम्प्लिश किया, एंड देख कितने अच्छे से मैनेज किया तूने अपने आप को. यू विल सी हाउ सारी थकान यू इवेपोरेट हो जाएगी आपकी. You will start feeling so high at that moment. The moment you will start saying that. और ये practice करना शुरू करना आज से. हाँ जी, पढ़ें. Okay. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you're grateful for being you, you are happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Yeah, so what it says is when जब आप gratitude देते हो ना, तो gratitude is a positive feeling. जहाँ positive feeling है वहाँ negative तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही feeling रह सकती है. तो अगर आपने कोई mistake की है
तो बी ग्रेटफुल, इसमें से मैंने क्या सीखा, या एंड डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अपने आप को देख के सिर्फ अच्छा ही बोलना है अपने बारे में, और आपको हैरानी होगी, जैसे अभी अर्चना वाज शेयरिंग के इसके हस्बैंड के बाल काले होने शुरू हो गए। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको जो भी चीज के लिए आप क्रिटिसाइज करते हो ना, इफ यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, यू विल सी आपकी वो चीज अपने आप खूबसूरत होती चली जाएगी। या योर स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग, your hair will start growing and become thick, and आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। आपकी, मान लो आपको जॉ लाइन चाहिए, बिल्कुल डिफाइंड जॉ लाइन, यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अपने आप आपकी जॉ लाइन अपने आप बनती जा रही है, आपकी फिगर चेंज होती जा रही है, आपकी वॉकिंग का स्टाइल चेंज होता जा रहा है। आप किसी भी चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे अपने आप में, वो चीज आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो क्रिटिसाइज नहीं करो, हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दो। या एंड व्हेन यू आर हैप्पी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप हैप्पी होगे तो आपको हैप्पी ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। आई रिमेम्बर कि मैं ना बड़ी मतलब ऐसी उदास सी रहा करती थी, तो मेरे आसपास लोग भी वैसे रहते थे, सब रोने धोने वाले, आज ये हो गया, आज वो हो गया टाइप्स, and since the time I've started keeping myself happy, like this trip when I went with my partner and his wife, it was such an amazing trip. मैं जिंदगी में पहली बार उनके साथ गई हूँ। I have barely known them. मैं 2 महीने से या 3 महीने से संदीप को जानती हूँ, मैं सिर्फ 2 बार या 3 बार उनको मिली हूँ। अदरवाइज हम लोग जूम पे ही हमेशा अपनी मीटिंग्स करते हैं, या जो कुछ भी होती हमारी जो वर्कशॉप्स करते हैं, यहाँ आपस में भी डिस्कशंस करते हैं। It's very rare that we have met, and we spent 5 days together. It was like breeze. It is full of joy and happiness. Everybody was enjoying each other's company. Nobody was complaining. Nobody was blaming anybody. मतलब मैंने तो कल उनको बोला, मैंने कहा यार आप लोगों की आपस में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। You've been married for 40 years, and I have not even once, heard both of you arguing with anybody, with each other on any subject. And that was amazing. How did it happen? Because I attracted it in my life. Because I am staying happy these days. So I'm attracting such people in my life. And ऐसा नहीं है कि वो रोने धोने वाले लोगों के फोन नहीं आए थे. But then I was not getting sucked into their feelings, because I was keeping myself above all that. तो मैं जब happiness में हूँ, या मैं contentment में हूँ, अगर मैं gratitude में हूँ, तो अगर कोई अपना दुखड़ा भी रो रहा है ना, तो मुझे वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। पहले क्या होता था, वो कुछ बोलते थे तो मैं अपनी लाइफ के से कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके, हाँ जी ये तो मेरे साथ भी हुआ था, एंड आई स्टार्ट यू फीलिंग सैड और बैड अबाउट इट। सो दिस इज हाउ इट इज, व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, you will attract good and happy things in your life. Anji, magic practice number 27. Magic practice number 27, the magic mirror. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so while doing the magic practice, mirror practice, you have, if you're brave enough, look for 3 things you can be grateful for about yourself. It could be that you have good smile, it could be that you have a beautiful hair, or you have तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है। और maybe you are such a happy person, you're such a confident person, you are such a good friend. कुछ भी चीज के लिए आप ना ऐसी 3 चीजें अपने बारे में सोच सकते हो। जैसे I can say I have a good eye for good collection. I can say that. So I'm happy about that. So,
when you start looking at it, आपको ऐसी 3 चीजें ढूंढनी है अपने बारे में जिसके लिए आप grateful हो सकते हो. Like I like my smile, you know, I like my skin, I like my glowing skin. मैं कहती हूँ ना, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता. So this is kind of things you can say, you know, just feel happy about yourself and be grateful for it, right? So that is what you're supposed to do, and it's a very important chapter. मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको हल्के में मत लेना, हल्के में नहीं लेना इस चैप्टर को. This is the most important chapter of your life, और इसको प्रैक्टिस करना है and make gratitude way of your life. Yeah, that's what you're supposed to do. So I need to ask you 2 things today. मुझे आपसे 2 request करनी है. So if you're okay, I will just take 10 minutes. Are you guys okay with that? Say yes or no. Yes, ma'am. Others, is it okay? Yes, yes. Okay. So see, हमारी ये journey खत्म होने वाली है. We have just 2 more days. Tomorrow is 28th chapter, where we will be talking about going forward. हमें किस तरह से gratitude को अपनी practice में रखना है, right? Next 2 chapters basically वही हैं. And if you want, I'll do a recap of all the 27, 28 days. If you need it, I'll do one recap of all the chapters. That is another thing. So practically speaking, हमारे sessions जो है, जो हमारे practical sessions जो है, chapters हैं, वो आज तक हैं. कल से हम अपने next, like आज के बाद जो हम अपनी life में gratitude को कैसे रख सकते हैं, how to keep it alive, उसके बारे में है. So I have to make request 2 things from you guys. Number 1, जब से हमने journey शुरू की है और आज तक, I'm so so grateful to each one of you for giving me this opportunity that I've been able to contribute and getting contributed by each one of you. Yeah, I'm also not the same person who started this journey. I've also evolved. I've also changed. I'm also transformed. Yeah, and it is all because of you people. Yeah, आप लोगों की वजह से है कि मैं आज वो नहीं हूँ जो 1st June को थी. Yeah, so that's what I wanted to say. That is one. Similarly, आपने अपनी लाइफ में देखो, आपकी लाइफ में जब से आपने जर्नी शुरू की है, क्या क्या चेंजेस आए हैं. Whether it is in your own self, आपके अंदर क्या चेंज आया है, आपके रिश्तों में क्या चेंज आया है, आपकी हेल्थ के एरिया में क्या चेंज आया है, आपके मनी के एरिया में क्या चेंज आया है, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में क्या क्या चेंजेस आपको दिखी हैं ड्यूरिंग दिस सेशन. एंड आई जस्ट वांट, on a scale of 0 to 10, I want you to evaluate it. कि जब आपने ये जर्नी शुरू की थी, तब आप कौन से लेवल पे थे, और आज आप 27th डे पर कौन से लेवल पे हो. Has there been any shift? Like if I say, when I started at say around, if I say I started at 5, I was at 5 because I've been practicing it. So I was at 5. So where am I today? So maybe at 8 today. आज मैं 8 तक पहुंच गई हूँ. So similarly, you have to evaluate that. And I really want all of you to please share it on the group. WhatsApp group में share करें कि आपकी जर्नी में, जब से आपने जर्नी शुरू की है, आप, if you want, you can write it in the chat box right now also. From 0 to 10, how much have you moved? How much has your life moved? Yeah, this will help me in, evaluating कि मुझे कहाँ पर और, काम करना है, so that I am able to make it more effective, more worthwhile for you people who are joining. Yeah, so this is one I wanted to say. The other thing I wanted to say was that I'm also a human being, right? And you all believe that I am putting energy and effort into these sessions? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yeah. certainly. Yeah. So I really want to keep me motivated. If you can, transfer some energy, energy exchange कहते हैं जैसे, like, because I want to start the next session. I think maybe around 10th, I'll start another one. And I want that one to be more valuable for you. So we want to start with MIS and buddy structure and some quiz also. Okay, every week we'll give you a quiz. क्या जो sessions किए उसमें से आपने क्या क्या सीखा and all.
So we are trying to add some more value additions into that. So I'm working with Puran on that. So, that will also be working out. We need back-end team for that. Right now, I'm managing it alone. So whatever is happening, kabhi network issue, kabhi wo sab kuch nahi hoga. Going forward, hopefully it should not happen. So I just want, in case you feel that I have made some contribution in your life and you want to encourage me or motivate me, it's not mandatory. If you want, you can just, transfer some energy, like in the form of money, into my Paytm. It's not mandatory at all. I'm not doing this for money. You all know that. It's just that because I don't want that you have a imbalance in your karma also, because energy is required to be exchanged. So that is why I'm saying, and this is the first time I'm saying and the last time I'm saying. I will never say it again. And I just wanted to say this, that you, if you want, up to you. And you can just, it's the same number on which you contact me on the WhatsApp group, up to you. And if you do, I'll accept it with folded hands with lots of gratitude. And if you don't, I will not say a word, because your being here has been more than any other contribution to my life. And I love all of you, and I will see you tomorrow at 6:20. And और ये 0 to 10 का please जरूर लिखिएगा, because that will help me कि हमने कितना इसमें और effort डालना है ताकि इसको और valuable बना सकें for all the participants who will be joining the next session, right? So this is going to be your contribution to the mankind also, क्योंकि जो भी लोग बाद में join करेंगे उनके लिए हम कितना उसमें और contribute कर पाएंगे, वो आपका contribution होगा उसमें, right? So thank you so much, and I will see you tomorrow at 6:20. And today is what? Friday. So कौन सा Friday है? कौन बोलेगा? Fabulous Friday. Okay, so it is Fabulous Friday today. So let's do the gratitude prayer. And Bijal is starting with meditation sessions in the month of July. Bijal, 14 days का है ना? Yes, ma'am. 14 days का है मेरा classes. Yeah. And She's already shared it in the group. So anybody who's interested, just sign up. I think she's just charging 500 rupees for that, and which is like that is also just an energy exchange, nothing else. Because whatever you get in these sessions, like meditation and other such sessions, is invaluable. उसको आप कुछ पैसा तो उसके आप कुछ value तो लगा ही नहीं सकते. जो magic में भी आपको रोंडा ने हमें जो कुछ दिया है, क्या हम उसका कुछ मोल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या कुछ मोल जो हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रही है रोंडा? Not at all. हाँ, it's invaluable things which we are practicing. So similarly with meditation, जो meditation होता है वो भी invaluable होता है. उसका आप कुछ price tag नहीं लगा सकते उसके ऊपर. It's just an energy exchange which she is charging. So if you want, you can join her group, and the details are there in the group. So you can just check and register. Is that okay, Bijal? yeah, thank you so much, ma'am. Thank you once again. You're welcome. And let's do the magical gratitude prayer. Just hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so thank you everybody, and have a fabulous Friday, and we'll see you tomorrow at 6:20. And it is so good to be back home. Thank you, Jit. I think your contribution is priceless also. Thank you so much, Shruti. Thank you. And anybody wants to ask any question or something, you can call me later, because right now I think we have already overshot the time. So, good morning, Daksh. How are you, beta? Fine, ma'am. Okay, take care. Thank you, ma'am. Everybody bless him. He's
slightly unwell. Let's pay gratitude for his health. And he's going to be fine. He'll be running around by the evening today. Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you. God bless you. Bye-bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, Victor.